Amol draws a bill on Atul for rupees 24,000 on 6th October 2019 for 3 months. Atul accept the bill on the same date. So basically यहाँ पे first we have to identify who is drawer and who is drawee, and it is quite simple. Amol draws the bill, so Amol is drawer. Atul accepted the bill, so Atul is drawee. Let's see what exactly we have to prepare. Give journal entries in the books of Amol. So we have to pass journal entry in the books of Amol only, that is drawer only. So let's prepare the format. In the books of Amol, bracket mein we can write drawer. Okay, let's read first transaction again. Amol draws a bill on Atul for rupees 24,000 on 6th October 2019 for 3 months, and Atul accepted it. So basically first entry will come for acceptance of bill. As there is no transaction of sale, so we don't have to record entry for sale. We directly record the entry for acceptance. Let's write the date first, 2019 October 6, and the entry for acceptance is bill receivable account debit to drawee's account. So entry आएगा bill receivable account debit 24,000 to drawee यानी कि Atul's account 24,000. And after this we will write the narration. Let's read further and see what is given. Amol sent the bill to bank for collection on 20th October 2019. So next entry will come for bill sent for collection. Let's write the date first, October 20, and bill sent for collection का entry क्या होता है? Bill sent for collection account debit to bill receivable account. So bill sent for collection debit 24,000 to bill receivable 24,000, and narration आ जाएगा being Atul's acceptance sent to bank for collection. Let's read further. Before due date, Atul find himself unable to make the payment of the bill and requested Amol to renew it. Let's read the conditions for renewal. Amol agrees to the proposal on a condition that Atul should pay rupees 10,000 in cash along with interest rupees 800 and accept a new bill for 2 months for the balance. Now we have to record the renewal, and renewal we record in 4 steps. Number 1, डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल, और डिसऑनर के लिए हम कौन सा डेट लिखेंगे? ड्यू डेट लिखेंगे. सो बिल कब ड्रॉ हुआ था? October 6 को, एंड फॉर 3 मंथ्स. सो 3 मंथ्स अगर आप ऐड करते हो, सो इट विल बी नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड प्लस 3 ग्रेस डेज. तो आंसर आ जाएगा 2020 Jan 9. ओके, देन ड्रॉवर के बुक में आप जब भी डिसऑनर का एंट्री पास कर रहे हो, यू हैव टू फाइंड आउट कि उस बिल के साथ अर्लियर आपने क्या किया था. सो दिस बिल वॉज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, करेक्ट. सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन होने के बाद अगर डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या आएगा? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, यानी कि अतुल्स अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, एंड नोटिंग चार्जेस नॉट देयर, तो अमाउंट सिर्फ 24,000 आएगा, दैट इज बिल का अमाउंट आएगा. एंड आफ्टर दिस वी विल राइट द नरेशन. देन द सेकेंड स्टेप इज इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री. सो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होती है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी कि अतुल्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, एंड अमाउंट इंटरेस्ट का हमें ऑलरेडी दिया था. एंड आफ्टर दिस विल राइट द नरेशन. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज पार्ट पेमेंट. बट पार्ट पेमेंट के लिए पहले हम एक वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते, तो उससे हमें पार्ट पेमेंट और न्यू बिल का अमाउंट पता चल जाएगा. सो विल गिव द हेडिंग वर्किंग नोट रिन्यूअल ऑफ बिल. फर्स्ट विल राइट द ओल्ड बिल का अमाउंट विच इज 24,000. इन दिस अगर नोटिंग चार्जेस है दैट वी विल ऐड, बट यहाँ पे नोटिंग चार्जेस इज नील, सो टोटल अमाउंट ड्यू विल बी 24,000 ओनली. एंड दिस 24,000 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वन इज पार्ट पेमेंट, अनदर वन इज बैलेंस. सो पार्ट पेमेंट क्वेश्चन में आपको कितना दिया था? अतुल शुड पे रुपीज 10,000 इन कैश. सो आउट ऑफ 24,000 10,000 पेड इन कैश, करेक्ट. सो बैलेंस कितना बचा? 14,000. एंड आफ्टर बाइफरकेटिंग वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट. But in this sum, we don't need to calculate interest because it is already given in the question, 800 rupees का interest, correct. Now after this you have to take very important decision. कभी कभी ये इंटरेस्ट हमें पार्ट पेमेंट के साथ में मिलता है और कभी कभी ये हमें बिल के साथ में मिलता है. तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये इंटरेस्ट हमें पार्ट पेमेंट के साथ में मिल रहा है तो ये इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट में ऐड होगा, और अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये इंटरेस्ट हमें न्यू बिल के साथ में मिलने वाला है तो ये इंटरेस्ट हम न्यू बिल में ऐड करेंगे. So let's read the question and decide. यहाँ पे क्या दिया था? Amol agrees to the proposal on a condition that Atul should pay rupees 10,000 in cash along with interest of rupees 800. मतलब ये जो 800 है हमें कैश में ऑन द स्पॉट मिलने वाला है, तो ये इंटरेस्ट हम कहाँ ऐड करेंगे? पार्ट पेमेंट में ऐड करेंगे. सो टोटल हमारा कैश बैंक अकाउंट कितने से इफेक्ट करेगा? 10,800.
बैलेंस में फिलहाल कुछ ऐड नहीं हुआ, सो टोटल अमाउंट बैलेंस का कितना रहेगा 14,000 और इस पे वी विल ड्रॉ न्यू बिल जो भी बैलेंस बचा हुआ है. लेट्स सी द एंट्री. ऑलरेडी वी रिकॉर्डेड डिसऑनर का एंट्री एंड इंटरेस्ट ड्यू का. नाउ थर्ड वी विल रिकॉर्ड एंट्री फॉर पार्ट पेमेंट. So from drawer point of view, part payment का money comes in, that's why cash bank account debit, who is giver, drawee. So to drawee's account and amount कितना था part payment का 10,800 and we'll write the narration after that. Next entry will come for acceptance of new bill. So entry in the books of drawer क्या होगा, bill receivable account debit 14,000 to drawee account यानी कि अतुल्स account 14,000 and we'll write the narration being new bill drawn and acceptance received. Let's read further. Atul retired the bill on 12th Jan 2020 by paying rupees 13,500. यानी कि ये जो नया बिल अभी अभी हमने ड्रॉ किया वो अतुल ने रिटायर्ड कर दिया. रिटायर्ड का मतलब क्या होता है, ऑनरिंग द बिल बिफोर ड्यू डेट. किस डेट पे ऑनर हुआ, 12th Jan. बिल रिटायर हो रहा है तो फ्रॉम ड्रॉवर पॉइंट ऑफ व्यू मनी कम्स इन, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट. बट इंस्टेड ऑफ 14,000, बिल कितने का ड्रॉ हुआ था, 14,000 का हुआ था. वी आर गेटिंग हाउ मच, 13,500. करेक्ट. सो कैश बैंक में कितना आएगा, 13,500. नाउ जो डिफरेंस 500 है वो क्या हो गया, डिस्काउंट. और रिटायरमेंट के केस में जो डिस्काउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीबेट 500. एंड वी आर गेटिंग दिस मनी अगेंस्ट बिल, सो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट एंड द अमाउंट इज 14,000. सो एंट्री फॉर रिटायरमेंट इज कैश बैंक डेबिट, रीबेट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. And after this we will write the narration being Atul acceptance retired and rebate allowed.